کرنگی صنعتی ایریا تھانے کی حدود کاسوے سے اسلحہ اور دستی بم ملنے کا واقعہ۔ کرنگی صنعتی ایریا تھانے سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ اس پر بھی اپڈیٹ کیجیے گا سلمان۔ دیکھیں بالکل گزشتہ روز کرنگی صنعتی ایریا تھانے کی حدود سے کاسوے سے اسلحہ اور دستی بم ملنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ واقعے کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں کرنگی صنعتی ایریا تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں 7 ایریا انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں، جبکہ بیگ سے گولیاں، ریوالور، دستی بم برآمد ہوئے تھے۔ مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ تفصیل کی اگر ہم بات کریں تو 2 عدد ARG ہینڈ گرینیڈ برآمد ہوئے تھے، اسی طرح 2 عدد RGD ہینڈ گرینیڈ برآمد ہوئے تھے، 3 عدد ARGS ہینڈ گرینیڈ جو ہے وہ برآمد ہوئے تھے، 9 عدد رائفل گرینیڈ بغیر لانچر کے برآمد ہوئے تھے۔ اسی طرح نیلے رنگ کے بیگ سے 3 ریوالور 5 میگزین کے ساتھ برآمد ہوئی، جبکہ 3 9mm کے میگزین 16 کارتوس کے ساتھ برآمد ہوئے۔ اسی طرح 95 جو ہے وہ LMG کی گولیاں برآمد ہوئی، 75 جو ہے وہ 30 بور کی گولیاں برآمد ہوئی اور 1000 SMG کی گولیاں برآمد کی گئی ہیں۔ برآمد ہونے والا اسلحہ، گولیاں اور ہینڈ گرینیڈ کو PD نے سیل کر دیا ہے، جبکہ واقعے کی تحقیقات CCTV کے حوالے کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹرز کی جانب سے ہڑتال کا معاملہ OPDs، بچوں کے ICU کے بعد اب ایمرجنسی کے مریضوں کو بھی ریفر کیا جانے لگا، جس سے مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ابراہیم رند سے۔ ابراہیم بتائیے گا۔ جی دیکھیں بالکل عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹر ہیں جن کی تعداد 350 ہے، جو کہ ہاؤس آفیسر اور PG ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کو وظیفہ نہیں دیا جا رہا گزشتہ کئی ماہ سے، جس کی وجہ سے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ OPDs کا تمام کا بائیکاٹ رکھا 2 دن تک، اور بچوں کے ICU کا بھی آج سے بائیکاٹ کیا انہوں نے دوسرے دن، اور اس کے بعد جو ہے اب ایمرجنسی کی صورتحال بھی انہوں نے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ مشکلات پیدا کر دی ہیں ایمرجنسی میں بھی، کیونکہ ایمرجنسی کے اندر آنے والے مریضوں کو بھی اب ریفر کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے OPD، پھر بچوں کے ICU، اور اب ایمرجنسی سے مریضوں کو ریفر کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے مختلف علاقوں سے عباسی شہید اسپتال پہنچنے والے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آج عباسی شہید اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فیصل سمدانی اور اسپتال کے MS ڈاکٹر جاوید اقبال نے ڈاکٹروں سے مذاکرات کیے تھے، لیکن مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ اسپتال کی انتظامیہ نے ڈاکٹروں سے اپیل کی تھی کہ خدارہ ایمرجنسی سروسز بند نہ کریں، اپنا پرامن طریقے سے احتجاج لازمی کریں جب تک آپ کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، لیکن ایمرجنسی اور بچوں کے ICU سمیت OPD کو کھول دیں۔ لیکن ڈاکٹروں کی ہٹ درمی برقرار ہے، جس کے پیش نظر مریضوں کو اب ریفر کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ تشویشناک صورتحال ہے، جس پر میئر کراچی اور دیگر اعلیٰ حکام کو فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ جی فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم رند اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ MA جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں آتش زدگی سے 6 افراد کی ہلاکت اور 35 سے زائد زخمیوں کے باوجود انتظامیہ ہوش میں نہ آ سکی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں آتش بازی کے گودام تاحال قائم۔ رہائشی علاقوں میں آتش بازی کے گودام شہریوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ شہر قائد میں آتش بازی کے گوداموں کی تفصیلات CT21 نے حاصل کر لی۔ سب سے زیادہ آتش گیر مادہ ضلع غربی کے اورنگی ٹاؤن میں موجود ہے۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ MA جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں آتش زدگی سے نصف درجن انسانی جانوں کا زیاں، مگر شہر میں جگہ جگہ پٹاخوں کے گودام قائم۔ کیا پھر کسی سانحہ کا انتظار ہے؟ رہائشی علاقوں میں آتش بازی کے گودام شہریوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ سب سے زیادہ آتش گیر مادہ ضلع غربی کے اورنگی ٹاؤن میں موجود۔ اورنگی ٹاؤن، رضویہ، لائنز ایریا، لانڈی اور کورنگی میں آتش بازی کے گودام قائم۔ لائنز ایریا میں برہان، MA جناح روڈ پر ایوب کے گودام آباد۔ اورنگی ٹاؤن میں ماجد، عارف، سہیل پپی، عابد مسالہ اور سلمان بارود بیچنے لگے۔ سینٹرل میں رضویہ کے علاقے میں نعیم عرف بڑا بارود سپلائی کرنے لگا۔ لانڈی میں سلیم، شعیب عرف علی اور معروف کے گودام شہریوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ اورنگی میں شاہ رخ فائر ورکس نے انسانی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ کہاں کتنا بارود موجود ہے، اسپیشل برانچ CTD اور متعلقہ پولیس بے خبر۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی بڑے سانحہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ہمراہ اسامہ ملک، City 21۔ سندھ ہائی کورٹ نے دھرنوں، پولیس کی عدالتوں میں داخلے سے روکنے اور وکلاء ہڑتال سے متعلق اہم نکات پر وضاحت طلب کی ہے۔ عدالت نے وکلاء رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ فارمولہ طے کریں کہ احتجاج کے دوران عدالتی نظام میں خلل نہ پڑے۔ ممتاز جمالی کی رپورٹ۔
सिंध हाई कोर्ट में धरनों से निमटने और अदालतों में पुलिस एहलकारों के दाखिले में रुकावट से मुतालिक गाइडलाइंस की दरख्वास्त। फरीकैन से वजाहत और तफसीली जवाब तलब कर लिया। 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए कि पुलिस को अदालतों में दाखिले से रोकना कानूनी तौर पर जायज है या नहीं। अगर जायज है तो कानून पेश किया जाए। मजीद इस्तफसार किया कि कौन सा कानून शाहराहों पर धरने या एहतजाज की इजाज़त देता है। लार्जर बेंच ने यह सवाल भी उठाया कि क्या बार एसोसिएशंस के लिए हड़ताल का ऐलान करना कानूनी तौर पर दुरुस्त है। अदालत ने निशानदेही की कि वकला पेशावराना फीस लेने के बावजूद मुकदमात की पैरवी और अदालतों में पेश होने से रोकते हैं। बेंच ने कहा कि बार एसोसिएशंस की हड़ताल आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट से मातहत अदालतों तक महदूद होती है। अदालत ने मातहत अदालतों में वकला के घेराव के मसाइल पर इकदाम तजवीज़ करने की हिदायत भी दी। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध बार कौंसिल से गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान वकला के खिलाफ शिकायत और कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तलब किया। अदालत ने हिदायत की कि हाई कोर्ट बार के सदर, वाइस चेयरमैन सिंध बार कौंसिल, IG और सेक्रेटरी दाखिला मुलाकात करें और फार्मूला तय करें ताकि एहतजाज के दौरान शहरियों की रसाई और अदालती निज़ाम में खलल ना पड़े। खबर आपको दें कि मुतवक्के बारिशों के चैलेंज से निमटने के लिए लियारी टाउन की तैयारियां मुकम्मल। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद ND खान का मुख्तलिफ यूसीज और अहम शाहराहों का दौरा है। हमाद ND खान ने लियारी मिर्जा आदम खान रोड, ली मार्केट, चाकीवाड़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब के कामों का जायजा लिया। शुएब मुख्तार से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, मुतवक्का बारिशों के चैलेंज से निपटने के लिए लियारी टाउन ने जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद ND खान ने मुख्तलिफ यूसीज और अहम शाहराहों का दौरा किया है। हमाद ND खान ने लियारी मिर्जा आदम खान रोड, ली मार्केट, चाकीवाड़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आपके कामों का जो है वो जायजा लिया है। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद ND खान के हमरा जो है यूसी चेयरमैन इंजीनियर रशीद हारून, फहीम बलोच, सिद्दीक बलोच और म्यूनसिपल अफसरान भी जो है मौजूद थे। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद ND खान का कहना था कि लियारी टाउन में बारिशों में निकासी आपकी सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में रही है। लियारी टाउन में छोटे बड़े नालों की सफाई को यकीनी बनाया गया है। कोशिश करेंगे कि बारिशों में लियारी के मकीनों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का सिलसिला जारी है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,49,493 की सतह पर बंद हुआ। हफ्ता भर 224 अरब रुपए मालियत के शेयर्स का लेन देन हुआ। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने रफ्तार पकड़ ली, सरमायाकारों की खरीदारी में दिलचस्पी बढ़ने लगी। कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 3001 पॉइंट की तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 5.7% इजाफे के बाद 1,49,493 की सतह पर बंद हुआ। इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,51,261 और कम तरीन सतह 1,46,403 रही। इस दौरान 224 अरब रुपए मालियत के 3 अरब 95 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। माहिरीन का कहना है कि स्टॉक मार्केट की तेजी में माशी शुमार ने अहम किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 266 अरब रुपए का इजाफा हुआ और ये 17,735 अरब रुपए पर पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक माशी अदद-ओ-शुमार की वजह से मार्केट मुस्बत जोन में बरकरार रहेगी। अशरफ खान, सिटी 21। रोशनियों का शहर, सनतों की पहचान, कराची एक बार फिर बन गया है कारोबारी दुनिया का मरकज। एक्सपो सेंटर में 21वीं इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर एशिया सच गई। नुमाइश में जदीद टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तिजाज देखने को मिल रहा है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर एशिया का आगाज। नुमाइश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सनती मशीनरी, ऑयल एंड गैस आलात और मुतबादिल तवानाई जैसे जदीद शोबों की मसनूआत पेश। बेलारूस, चीन, ईरान समेत 185 मुल्की व गैर मुल्की कंपनियों की नुमाइश में शिरकत। नुमाइश में लीवॉल टेक कंपनी ने जदीद इन्वर्टर्स, EV चार्जर और लेथम बैटरीज मुतारिफ करा दी।
तमाम एशिया अपनी मिसाल आप हैं। देखें, सोलर इंडस्ट्री में जो सबसे बेसिक कंसर्न होता है, स्पेशली ऑन इन्वर्टर्स और बैटरी साइड, आपकी एक दो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलनी चाहिए। हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं और इसके साथ साथ जो कि हमारी टारगेट ऑडियंस हमारी एक जो आप कह सकते हैं मिडिल क्लास आवाम भी है, जिनको आजकल सोलर की ज़रूरत है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हमारी प्राइसिंग भी उसके लिए बहुत कंपेटेबल है। मुंतज़मीन बोले, नुमाइश का मकसद न सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट में सरमायाकारी के मौक़े को उजागर करना है, बल्कि मकामी सनतकारों और बैनुल अक़वामी कंपनियों के दरमियान मजबूत रवाबित कायम करना भी है। सर, ये एग्जीबिशन बेसिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर, माइंस एंड मिनरल्स और इससे रिलेटेड जो इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, CNC मशीन्स यहाँ पे काफ़ी मौजूद हैं। तो जो ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी की बेस है इंजीनियरिंग अप्लाइज टू ऑल दी सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान, तो उसके लिए हमने ये एग्जीबिशन लगाई है और इसके अंदर हम जो टोटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40,000 से लोग अगले 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल फेयर एशिया 2025 पाकिस्तान के सनती मुस्तकबिल की एक झलक दिखा रहा है। कराची में जारी ये नुमाइश सनत व तजारत की दुनिया में एक नया बाप रकम कर सकती है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। लायंस क्लब इंटरनेशनल की जानिब से मुकामी होटल में हल्फ बर्दारी की तकरीब में मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानेंगे शायान अली से। जी जी देखिए, कराची के एक निजी होटल में लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल की जानिब से जो एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस तकरीब में जो है वो तमाम तर जो अहदेदार हैं उनको अप्रिशिएट शील्ड भी पेश की गई है, जबकि यहाँ पर जो तकरीब में बड़ी तादाद में जो है मेंबर्स और उनकी फैमिलीज़ और अहले खाना समेत जो है दीगर ने भी शिरकत की है बड़ी तादाद में। इस वक्त यहाँ पर जो है यहाँ पे इस लायंस क्लब इंटरनेशनल के जो है कुछ अहदेदार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले जो है मलिक साहब से बात करेंगे। मलिक साहब, क्या कहेंगे आप आज की इस तकरीब के हवाले से? आज की ये तकरीब जो है, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो इस साल के इलेक्ट हुए हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, एहसन अरशद साहब, इनकी जो कैबिनेट बनी है, जो पूरे साल इनके साथ काम करेगी, जो उन्होंने लोग सिलेक्ट किए हैं अपने साथ काम करने के लिए, उसकी आज ओथ सेरेमनी थी, उसकी हल्फ बर्दारी थी, उसको कहते हैं इंस्टॉलेशन। तो ये एक बड़ा फंक्शन होता है। गवर्नर शुरू कर इलेक्ट हो के आए हैं ऑरलैंडो से, इंटरनेशनल कन्वेंशन से, और वहाँ के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ने और इंटरनेशनल बोर्ड ने इनको इलेक्ट किया, डिजिग्नेट किया, और इस साल के ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इस डिस्ट्रिक्ट के, यानी ही इज़ होली सोली इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और इन्होंने अपनी कैबिनेट बनाई है, जो लोग इनके साथ काम करेंगे, जो इंसानी खिदमत के जो इदारे चलाएँगे, उसके लिए इन्होंने आज उसकी कैबिनेट की इंस्टॉलेशन थी और इन्होंने मेरी जिम्मेदारी वो लगाई कि इनके उस कैबिनेट को मैंने इंस्टॉल किया है, उनसे हेल्प लिया है। 89 क्लब से तो थोड़ा सा वाजे करेंगे कि कहाँ पर रहे हैं दुनिया भर में या सिर्फ पाकिस्तान में, कहाँ हैं थोड़ा सा? ये जो 89 क्लब्स का मैंने जिक्र किया, ये डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंडर है। साउथ के अंदर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर 89 क्लब्स हैं, और ये कराची में भी हैं, हैदराबाद में भी हैं, सक्खर में भी हैं। देयर स्प्रेड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट साउथ। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मेंबरान आए जो कि हैदराबाद से भी आए हुए हैं, कराची से भी आए हैं, तो यकीनन उनकी जानिब से जो एतमाद भी किया होगा आप पे, जो आपकी बॉडी बनी है उस पर भी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिन साथियों ने मुझे 100% वोटिंग मिली है, और मैं उनको एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि इंशाल्लाह हम लोग मिल के इकट्ठे होकर सर्विस का काम करेंगे और लायंस के अज़म को आगे लेके बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब हमारे साथ भी मौजूद थे, इनके साथ सीनियर मेंबरान भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी बात की तो उनकी जानिब से यही कहा गया था कि मिलकर ये काम करेंगे और ये काम जो है कई अरसे से चलता आ रहा है, और इसी तरह जो है मिलकर सर अंजाम भी देते रहेंगे। जी, आर्ट्स काउंसिल में उर्दू अदब से जुड़ी महफिल मुशायरा का इनेकाद। मारूफ शायर जावेद सबा कहते हैं कि अदबी महाफिल का तसलसल से इनेकाद खुशगवार सिलसिला है। नौजवान नस्ल में अदब की तरवीज के लिए मुशायरे अहम किरदार अदा करते हैं। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में, जहां पर महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, और इस वक्त हमारे साथ सीनियर शायर मौजूद हैं जावेद सबा साहब। जावेद साहब, शहर कायद का एक खासा रहा है, यहाँ पर अदबी महाफिल तसलसल से होती रही, और अब देख रहे हैं कि इस साल में वक्तन फ़वक्तन गाए बगाए कहीं ना कहीं महफिल मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है। नौजवान बड़ी तादाद में आते हैं। इस अदबी महफिलों को किस तरह से देखते हैं? नहीं, आपने दुरुस्त कहा, और
यानी चंद बरसों से मैं ये देख रहा हूँ कि जो अदबी महफिल हैं, मुशायरे और नशिस्तें, एक्टिविटीज़ बहुत हैं, बहुत बेहतरीन बात है। किसी भी सतह पे कोई नशिस्त हो रही हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसमें इल्म अदब की बात ही हो रही है ना, कि शायरी है और तमाम चीज़ें, तो ये एक बहुत अच्छा अमल है। और शायरी तो हमारी सोसाइटी का, हमारे माशरे का आज से नहीं, और हमेशा से ये रहा है कि शायरी का अपना एक प्रिविलेज है, लोग उसे पसंद करते हैं, शायरी करना चाहते हैं, शायरी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल जी, शायरी अपना एक असर रखती है, मकाम रखती है और इस्लाही किरदार भी अदा करती है। वो बातें जो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते वो अशार की मदद से आप दूसरों तक पहुंचाते हैं। और जावेद साहब क्या कहेंगे, मौसम भी अच्छा है, बारिश भी है, और बारिश में जो सूरत हाल आपने देखी है उनको अगर अपने अशार में ढालना चाहें तो किस तरह से डालें? अब असल में देखिए, जो भी शायरी होती पर्टिकुलर आप ऐसा नहीं हो, सहाफ़त और शायरी में ज़रा फ़र्क है, तो शायरी ज़रा अंदर घुलती है तो वो तमाम चीज़ें आती हैं। तो पूरी शायरी मेरी तो ख़ास तौर से, और भी लोग कि ये जितने भी समाजी मामलात हैं, बारिश, ये वो, तो हम लिखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। एक मैं आपको शेर सुना देता हूँ कि जो इस तरह से टैंकर माफिया और इस कराची का मतलब वो किया है, वो है कि फ़राते असर पे कब्ज़ा था और बच्चों को वो प्यास थी कि मुझे जहर तक पिलाना पड़ा। ये मैंने शेर अभी पढ़ा भी है। तो ये सूरत हाल तो रही है यहाँ शहर की भाई, और ये कदर खूबसूरत शहर, आप सियासत छोड़ दें, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, आप चल नहीं सकते। पानी में चलना कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं कि नीचे कौन सा गड़ा है, और ऐसे वाक़यात भी हुए, तो ये सब कुछ है। और हमारे साथ सीनियर शायर जावेद सबा साहब मौजूद थे, जो कि हालात हाज़रा पर गहरी नज़र रखते हैं और अपनी शायरी से समाजी मामलात पर भी गुफ्तगू करते हैं। और आज की इस महफिल में रौनक बख्शी, यहाँ पर आज जो मुशायरा मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत प्रोफेसर डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब ने की, और उसके साथ निज़ामत खालिद मीर की थी, जिसमें पाकिस्तान के नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश कर सामीन के ज़ौक़ की तस्कीन की। जी।